قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ جب ایک عورت دنیا کی مصروفیات سے الگ ہوتی ہے تو وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتی ہے۔ باہر کی آوازیں رکنے پر اندر کی آواز جاگ جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، میری اصل طاقت کیا ہے، اور یہی سوچ اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتی ہے کہ اصل سہارا نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی رشتہ، اصل سہارا صرف اللہ ہے جو کبھی بدلتا نہیں، کبھی چھوڑتا نہیں، کبھی دور نہیں جاتا۔ اللہ جب کسی عورت کو چن لیتا ہے تو وہ اس کے لیے راستے صاف کرتا ہے، وہ سب چیزیں اس کے راستے سے ہٹا دیتا ہے جو اسے کمزور رکھتی تھی، وہ رشتے جو اسے اللہ سے دور رکھتے تھے، وہ عادتیں جو اس کے ایمان میں رکاوٹ بنتی تھی، وہ سہارے جو اسے دوسروں پر منحصر رکھتے تھے۔ اللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ عورت اپنی اصل طاقت کو پہچان سکے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ عورت ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں وہ بن رہی ہوتی ہے، وہ دوبارہ ترتیب دی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی سوچ پختہ ہوتی ہے، اس کی روح بیدار ہوتی ہے۔ یہی اللہ کی حکمت ہے۔ جب وہ کسی کو خاص مقام دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے تنہائی کے راستے سے گزار کر مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے تنہائی کمزوری نہیں ہوتی، یہ اللہ کی محبت کا خاص پیغام ہوتا ہے۔ وہ تنہا نہیں ہوتی، وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ نمبر 2، لوگوں کا دور ہو جانا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ لوگ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں، کبھی بغیر بتائے، کبھی بغیر وجہ کے، کبھی اس طرح کہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ایک عورت کی زندگی میں یہ مرحلہ اور بھی حساس ہوتا ہے کیونکہ وہ دل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، تعلقات نبھانے والی ہوتی ہے اور رشتوں کے بارے میں بہت صاف دل رکھتی ہے۔ اسی لیے جب کوئی قریب کا شخص پیچھے ہٹتا ہے تو دل کی گہرائیوں تک تکلیف پہنچتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر دوری، ہر ٹوٹا ہوا رشتہ ہمیشہ نقصان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ انسان کے ارد گرد سے کچھ لوگوں کو ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لے، اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا دے اور اسے ایک نئی سمت دکھا دے۔ جب انسان سب سے مایوس ہو جاتا ہے تب اللہ کی طرف سے امید کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان پہلی بار رب کی قربت کو اتنی شدت سے محسوس کرتا ہے کہ دنیا کی پوری بھیڑ بھی اسے وہ سکون نہیں دے سکتی۔ لوگوں کا دور ہو جانا اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب لوگوں سے بہت زیادہ امید لگا لیتا ہے تو وہ اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا سہارا لوگ ہے، اس کی طاقت لوگ ہے، اس کی خوشی لوگوں سے وابستہ ہے۔ لیکن جب وہی لوگ اچانک دور ہو جاتے ہیں تو انسان کی آنکھ کھلتی ہے، تب وہ سمجھتا ہے کہ اصل سہارا تو اللہ ہے، باقی سب محض اس کے بھیجے ہوئے اسباب ہیں۔ ایک عورت جب اس حقیقت کو سمجھ لیتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ رشتوں کو نبھاتی ضرور ہے مگر دل کا سہارا کسی انسان کو نہیں بناتی۔ وہ اپنے دکھ اللہ کے حوالے کرتی ہے، اپنی پریشانیوں کا بوجھ اللہ پر چھوڑ دیتی ہے اور اللہ اسے بدلے میں سکون عطا کرتا ہے۔ یہی سکون اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ عورت اتنے دکھوں کے باوجود ٹوٹی ہوئی کیوں نہیں، اتنی باتوں کے باوجود خفا کیوں نہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہوتی ہے، اللہ اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ جب لوگ دور ہوتے ہیں تو خاموشی پڑتی ہے، مگر یہی خاموشی انسان کو سوچنے، سمجھنے اور اپنے رب کے قریب آنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ وقت انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کے اندر سے کمزوریوں کو نکالتا ہے اور اسے ایک نئے مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اللہ کبھی کسی انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، لوگ چاہے چھوڑ دیں مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، دیکھتا ہے، سنبھالتا ہے اور ایسے وقت میں مدد کر دیتا ہے جب انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ لہٰذا جو عورت اس دوری میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتی ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ لوگ چلے جائیں تو جانے دیں مگر اللہ کی قربت کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ جسے اللہ اپنا بنا لے اسے کوئی انسان اکیلا نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، خاموشی کا موسم۔ دل میں اللہ کی ہدایت جاگ اٹھتی ہے۔ زندگی میں بعض موسم ایسے آتے ہیں جن میں شور ختم ہو جاتا ہے، گھر میں لوگ ہوں یا نہ ہوں، دل کے اندر ایک خاموشی پھیل جاتی ہے۔ یہ خاموشی ایسی نہیں ہوتی جیسے سب کچھ ٹھہر گیا ہو، یہ وہ خاموشی ہوتی ہے جس میں اندر کا شور ختم ہونے لگتا ہے۔
और इंसान अपनी रूह के करीब आने लगता है। एक औरत की जिंदगी में ये मौसम अक्सर किसी तकलीफ, जुदाई या बड़े सदमे के बाद आता है। पहले तो वो टूटती है, रोती है, सवाल करती है, कभी खुद से नाराज होती है, कभी दुनिया से, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक लम्हा ऐसा आता है जब वो खामोश होना सीख जाती है। वो शोर मचाना छोड़ देती है, किसी को समझाने की कोशिश छोड़ देती है और सिर्फ अपने रब के सामने दिल खोल देती है। इसी लम्हे से खामोशी का असल मौसम शुरू होता है। ये मौसम दुखों का अंजाम नहीं, रूह के बेदार होने की शुरुआत होता है। जब दिल खामोश होता है तो इंसान खुद को सुनने लगता है और फिर खुद के अंदर अल्लाह की आवाज महसूस होने लगती है। आवाज कानों से नहीं, दिल के अंदर से आती है। ये आवाज कहती है, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं। ये एहसास किसी किताब से नहीं मिलता, ना किसी इंसान के लफ्जों से मिलता है। ये सिर्फ उस वक्त मिलता है जब अल्लाह चाहे। जब औरत बोलना छोड़ देती है तो वो सोचना शुरू करती है। पहले वो लोगों की बातों से घबरा जाती थी, मगर अब वो खुद अपने अंदर की तरफ देखती है। ये अंदर का सफर सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे खूबसूरत भी। खामोशी दिल से जख्म साफ करती है, पुराने दुखों की धूल बैठ जाती है, दिली बोझ कम होता है और इंसान पहली बार खुद को हल्का महसूस करता है। ये अल्लाह का खास करम होता है। जो लोग इस मरहले से गुजरते हैं वो खुद बदल जाते हैं। कुछ वक्त बाद वो औरत महसूस करती है कि उसके हर सवाल का जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगा है। कभी दिल में ख्याल की सूरत, कभी दिल के इत्मीनान की सूरत, कभी किसी अचानक आसानी की सूरत। ये वही वक्त होता है जब अल्लाह उसके अंदर से उसे रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। वो कहती नहीं, मगर दिल में समझने लगती है कि अब वो अकेली नहीं रही। जिस औरत ने हर तकलीफ, हर सवाल और हर तन्हाई को अल्लाह के हवाले कर दिया हो, वो टूटती नहीं, वो मजबूत होती है, सब्र वाली होती है और लोगों की बातों से मुतासिर नहीं होती। उसे मालूम हो जाता है कि उसकी असल ताकत अल्लाह है, न लोग न हालात। यही वजह है कि ऐसी औरत की आंखों में रोशनी आ जाती है और चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी और वकार पैदा हो जाता है। ये वकार दुनिया का दिया हुआ नहीं होता, ये अल्लाह की अता होता है। ये मौसम लंबा हो या छोटा, मगर इसका असर जिंदगी भर रहता है। एक औरत जो खामोशी में अल्लाह को पा लेती है, वो फिर किसी से नहीं डरती। वो जान लेती है कि जब सब छोड़ जाए तब अल्लाह थाम लेता है, और जिसे अल्लाह थाम ले उसे कोई इंसान गिरा नहीं सकता। नंबर 4, औरत की तरबियत। अल्लाह के तरीके से दर्द उस्ताद बन जाता है। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों की तरबियत बहुत खास अंदाज से करता है। इसकी हर आजमाइश के पीछे एक मकसद, एक हिकमत और कोई ना कोई भलाई छुपी होती है, जिसे इंसान फौरन नहीं समझ पाता। मगर अल्लाह जानता है कि कब कौन सी तकलीफ उसे मजबूत, बाशऊर और करीब तर बना सकती है। बाज औरतें हैरान रह जाती हैं कि आखिर दर्द इतना गहरा क्यों है, दिल इतनी बार क्यों टूटता है, लोगों की बेवफाई क्यों मिलती है, जिंदगी इतनी सख्त क्यों हो जाती है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस औरत का अल्लाह से बड़ा कोई ताल्लुक बनना होता है, उसकी तरबियत भी आम इंसानों जैसी नहीं होती। अल्लाह उसे उस मकाम तक पहुंचाता है जहां उसका दिल दुनिया से नहीं, सीधा अल्लाह से जुड़ जाता है। जिस तरह आग सोने को पाक करती है, इसी तरह दर्द इंसान के दिल को साफ करता है। तकलीफ इंसान के अंदर छुपी कमजोरियां, गलत तवक्कुआत और बेमहल मोहब्बतों को जला देती है। एक औरत तकलीफ के बाद ज्यादा समझदार हो जाती है, ज्यादा गहरी सोचने लगती है, ज्यादा सच्ची दुआ मांगती है और दूसरों के दर्द को ज्यादा बेहतर समझने लगती है। ये तब्दीली आसान नहीं होती, मगर जरूरी होती है। इंसान खुशी में शुक्र तो करता है, मगर अल्लाह को शिद्दत से याद तब करता है जब दिल जख्मी होता है। इसीलिए कभी कभी इंसान के इर्द गिर्द की आवाजें कम हो जाती हैं, रिश्ते कम हो जाते हैं, सहारे कम हो जाते हैं। ये सब इसलिए होता है ताकि वो अल्लाह के करीब हो जाए और अल्लाह से बात करना सीख ले। बहुत से रिश्ते, बहुत सी बातें, बहुत सी उम्मीदें इस औरत को उस वक्त तक धोखा देती रहती हैं जब तक अल्लाह उन्हें खुद खत्म ना कर दे। दर्द ये दिखाता है कि लोग हमेशा सहारा नहीं बनते, दुनिया हमेशा साथ नहीं देती और इंसान की असल ताकत किसी इंसान में नहीं, सिर्फ अल्लाह में है। ये पहचान एक औरत की पूरी जिंदगी बदल देती है। वो खुद को किसी इंसान के सहारे से नहीं, अल्लाह की मदद से पहचानने लगती है। जब एक औरत टूटती है तब अल्लाह उसे वो ताकत सिखाता है जिसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता। वो सब्र सीखती है, इज्जत सीखती है, अपनी कीमत पहचानती है
और अपने दिल के दरवाजे संभालना सीखती है। और यही तरबियत इसे वो औरत बनाती है जो हार नहीं मानती, टूट कर भी बिखरती नहीं और दुख के बाद भी दोबारा उठ खड़ी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में डालता है। इसका मतलब यही है कि दर्द सजा नहीं, मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह उस औरत को खुद बना रहा होता है, उसे किसी बड़े मकसद, किसी बड़े मकाम या किसी बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा होता है। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे आजमाइश में डालता है। नंबर 5, जब एक औरत अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाती है वो नई बनती है। एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आती है जब वो सच में अल्लाह पर भरोसा करना सीख जाती है। जब एक औरत ने सब कुछ खो दिया, लोगों का सहारा, दुनिया की तवक्कुआत और अपने मंसूबे, तब वो अल्लाह की तरफ मुकम्मल दिल से मुड़ती है। और यही वो लम्हा होता है जब वो वाकई नई बनती है। अल्लाह पर एतमाद करने वाली औरत के दिल में खौफ और परेशानी कम हो जाती है। वो जानती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल हो, चाहे लोग कितने ही साथ छोड़ जाए, अल्लाह हमेशा उसके साथ है। ये भरोसा इसे खुद मुख्तार और पुख्ता बनाता है। वो टूटती नहीं, हारती नहीं और छोटी नाकामियों से दिल बर्दाश्ता नहीं होती। जब एक औरत अल्लाह पर भरोसा करती है वो समझ जाती है कि दुनिया की चीज़ें आर्जी हैं। रिश्ते, दौलत, मकाम, लोगों की तौसीक, ये सब वक्ती हैं। असल सुकून और असल ताकत सिर्फ अल्लाह से मिलती है। ये पहचान उस औरत को हर झूठे सहारे से आज़ाद कर देती है और उसे अपनी असल शनाख्त दिखाती है। अल्लाह पर भरोसा करने वाली औरत हर इम्तिहान में साबित कदम रहती है। वो फौरी नताइज की तलाश में परेशान नहीं होती, बल्कि हर मरहले को अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक कबूल करती है। इसका सब्र सिर्फ दुख के वक्त नहीं बल्कि हर दिन की जिंदगी में जाहिर होता है। ये सब्र उसे पहले से ज्यादा पुख्ता और मजबूत बनाता है। जब दिल अल्लाह पर टिका होता है तो छोटी छोटी चीजें उसे परेशान नहीं करती। वो छोटी कामयाबियों पर खुश होती है और नाकामियों को उबूरी समझती है। जिंदगी का हर लम्हा उसे अल्लाह की नेमत लगता है। जब एक औरत वाकई अल्लाह पर भरोसा कर लेती है तो वो वही पुरानी औरत नहीं रहती जो पहले धोखे, दुख और गम के असर में थी। वो नई होती है, मजबूत और हिम्मत वाली, पुख्ता और समझदार, सुकून और एतमाद से भरपूर, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली ये नई औरत खुद पर भरोसा नहीं करती बल्कि हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत पहचानती है। वो जानती है कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है और हर कदम अल्लाह की रहनुमाई में उठाती है। भरोसा करना सीखना एक औरत की जिंदगी का सबसे कीमती सबक है। जब वो अल्लाह पर भरोसा कर लेती है तो वो सिर्फ नई बनती नहीं बल्कि मजबूत, आज़ाद और मकसद वाली बनती है। ये भरोसा उसे दुनिया के तूफानों से महफूज रखता है, दिल को सुकून देता है और आखिरत में कामयाबी की राह हमवार करता है। अल्लाह की मोहब्बत और भरोसा जिंदगी को नई शक्ल देता है और इस औरत को वो मकाम अता करता है जिसकी वो मुस्तहिक है। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी में सुकून, हमारे दिल में सब्र, हमारे घर में बरकत और हमारे कामों में आसानी अता फरमा। हमें हर इम्तिहान में साबित कदम रख, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें अपनी रज़ा और मोहब्बत की राह पर हमेशा चलने वाला बना। आमीन।